অস্ত্র ক্রেতার তালিকায় শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের নাম। বিশ্ব রাজনীতির চরম অস্থিরতার জোয়ার আছড়ে পড়েছে শান্তিকামী টোকিওর নীতির দেয়ালে। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। আমি সুমেন, আপনারা দেখছেন সুমেন रिएक्शंस। আমি ভালো আছি, আশা করি सभी ভালো আছেন। यहाँ पे जी आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और जापान के हवाले से, बांग्लादेश की डिफेंस डील के हवाले से। यहाँ पे जी काफ़ी डेकेड्स के बाद, दहाइयों के बाद जापान ने जो अपनी पॉलिसी है उसमें चेंज लेके आया है। और ये चेंज है कि पहले उनकी जानिब से, जापान की जानिब से किसी को भी जो वेपन्स हैं उनको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था। किसी कंट्री को भी उनकी जो वेपन्स की एक्सपोर्ट है उन्होंने उसको बैन किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसको अनबैन कर दिया गया है। और अब बांग्लादेश जापान के साथ अपनी डिफेंस डील साइन करने जा रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश जापान से बहुत ख़तरनाक किस्म के हथियार बाय करने जा रहा है। कौन से वेपन्स, कौन से इक्विपमेंट्स, कौन सी टेक्नोलॉजी बांग्लादेश हासिल करेगा, और ये देख के जो दुश्मन है उनका क्या कहना है, और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मसला होने जा रहा है। अभी पहले आप लोगों से रिपोर्ट शेयर करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। আর নয় যুদ্ধ, আর নয় কোনো আগ্রাসন, এই প্রতিজ্ঞা থেকে অবশেষে পিছু হটছে জাপান। ইতিহাসের পাতা উল্টে দিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন করে নিজেদের পরিচয় লিখতে চলেছে দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য স্থাপনকারী দেশটি। শান্তি হবে একমাত্র পথ, এই মতবাদ থেকে সরে এসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথমবারের মতো অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। অস্ত্র ক্রেতার তালিকায় শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের নাম। বিশ্ব রাজনীতির চরম অস্থিরতার জোয়ার আছড়ে পড়েছে শান্তিকামী টোকিওর নীতির দেয়ালে। পরিস্থিতি বিবেচনায় একসময় সামরিক শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা মেনে চলা দেশটি এখন নজর দিচ্ছে নিজেদের প্রতিরক্ষা শিল্পকে শক্তিশালী করার দিকে। নিরাপত্তা কৌশলের অংশ হিসেবে সম্প্রতি জাপান সরকার শিথিল করেছে সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানির ওপর থাকা সব নিষেধাজ্ঞা। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে উন্মুক্ত হয়েছে যুদ্ধজাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র সহ অত্যাধুনিক বিভিন্ন অস্ত্র সরবরাহের পথ। জাপানের পরিবর্তনে নড়ে চড়ে বসেছে শক্তিমত্তার দিক থেকে এগিয়ে থাকা এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো। তারা একে দেখছে আঞ্চলিক শক্তি ভারসাম্যের নতুন সমীকরণ হিসেবে। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে ইতোমধ্যেই নাকি ফিলিপাইনের সঙ্গে যুদ্ধজাহাজ রপ্তানির চুক্তিও সম্পন্ন করেছে জাপান। এতদিন ধরে উন্নয়ন, বিনিয়োগ আর মানবিক সহযোগিতার সূত্রে গাঁথা ছিল জাপান বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক। তবে সেই সম্পর্কে এবার এসেছে নতুন মোড়, পাওয়া যাচ্ছে সামরিক সহযোগিতার আভাস। আগামী 15 মে টোকিওতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জাপান ষষ্ঠ ফরেন অফিস কনসালটেশন, সংক্ষেপে FOC বৈঠক। সেখানে বাংলাদেশের কাছে অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব দিতে পারে জাপান। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠতাকে সুনজরে দেখছে না তাকাইচি প্রশাসন। বিশ্লেষকদের ধারণা, ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান দৌরাত্ম্যে শান্তিবাদী অধ্যায়ের পথ থেকে পিছু হটছে জাপান। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী বেইজিং এর উত্থান রুখতে অচিরেই বন্ধু দেশগুলোকে অত্যাধুনিক ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার সরবরাহ করবে টোকিও। ইট মারলে যে পাটকেল খেতে হয় সেটি চীনকে কড়ায় গন্ডায় বুঝিয়ে দিতে চায় জাপান। যদিও সামুরাই যোদ্ধাদের দাবি, প্রতিরক্ষার প্রশ্নে নিজেদের সংবিধানে আমূল পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে ইতোমধ্যেই বিবৃতি দিয়েছে তাকাইচি প্রশাসন। নতুন কাঠামোর অধীনে যুদ্ধজাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র এবং যুদ্ধ বিমানের মতো উন্নত সামরিক প্রযুক্তি অন্যান্য দেশগুলোয় রপ্তানি করবে তারা। যদিও এখনো নির্দিষ্ট ও
বিস্তারিতভাবে জানানো হয়নি কোন কোন অস্ত্র রপ্তানি করবে দেশটি। সামাজিক মাধ্যমে দেয়া এক বার্তায় জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি জানান, নতুন নীতির ফলে এখন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম স্থানান্তরকে নীতিগতভাবে বৈধ বলে গণ্য করা হবে। তবে এসব অস্ত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা দেশগুলোকে দিতে হবে জাতিসংঘ সনদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতি। জয় সরকার, 71। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी काफ़ी डेकेड्स के बाद जापान ने अपनी पॉलिसी चेंज की है और इस पॉलिसी को चेंज करने के बाद जापान जिन कंट्रीज़ को अपने वेपन सेल करने जा रहा है उसमें बांग्लादेश का नाम फहरिस्त में सबसे टॉप पे है। और यहाँ पे बांग्लादेश में जापानीज़ कंपनीज़ और जापानीज़ ऑफिशियल्स विज़िट करने जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश डिफेंस डील साइन करेगा और जापान से जापान की बहुत अहम किस्म की टेक्नोलॉजीज़ बाय करेगा। इसमें जापान के जो फाइटर तैयारे हैं उनकी भी डील साइन हो सकती है। यहाँ पे जो मिसाइल्स हैं बांग्लादेश जापान से वो भी बाय कर सकता है। लेट्स सी यहाँ पे बांग्लादेश जापान के साथ इस डील में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्नोलॉजी हासिल करता है। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे बांग्लादेश का जो डिफेंस की ताकत है वो बढ़ती जा रही है। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और उन्होंने कोशिश भी की है कि किसी तरह बांग्लादेश की डिफेंस डील्स को रोका जाए, उन पर लगाम डाली जाए। लेकिन कॉन्टीन्यूसली बांग्लादेश अपनी डिफेंस को लेके तेज़ी से डील साइन कर रहा है। और यहाँ पे चाइना एक बहुत अहम किस्म की कंट्री है जिसने बांग्लादेश की जो डिफेंस की ताकत है उसको बढ़ाने में बांग्लादेश की मदद की है। तो यहाँ पे कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को चाइना से दूर रखने के लिए बेसिकली ये चीज़ की जा रही है ताकि बांग्लादेश को चाइना से दूर रखा जा सके और बांग्लादेश जापान जैसी कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डील्स करे और अपना ध्यान जो है चाइना की बजाय किसी दूसरी कंट्री की तरफ लगाए। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो कही जा रही हैं। और वैसे भी चाइना का इस पूरे रीजन में जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है। ठीक है, सो यही वजह है कि जापान की पॉलिसी को आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम जो है बदल दिया गया है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। I will see you till then. Take care. अल्लाह हाफ़िज़। जापान की पॉलिसी को आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम जो है बदल दिया गया है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। I will see you till then. Take care. अल्लाह हाफ़िज़।